سے اترے، پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا، اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے، سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا، پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ہر مومن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ ہے کربلا کا درد بھرا واقعہ جہاں حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے حق اور سچائی کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا. کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو آئے ادب اور احترام کے ساتھ سنتے ہیں کربلا کا دردناک اور عبرت سے بھرا واقعہ. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے، اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے، حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں. اسی کے بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس نے اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو. حضرت حسین نے کس زبان سے کہا؟ کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے آنے دے، ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے. روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی. کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے. یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی. باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت، میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید،
क्या नाम है? हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी? 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया, गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक। कौन? हजरत गुरैद। और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा, हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए। कहा, हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों, वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, हमला किया। आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा, हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों, अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर, वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का, घोड़े पर सवार हो गया। कहा, अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा, बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा, बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों, अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों, जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों, अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा, तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों, हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा, मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी। सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया।
मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा। 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे। और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा। पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा। ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है। 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैदान करबला, अभी तो मकसद पर आना। भाई आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूँ, अल्लाह की कसम आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे दोस्तों ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है।
भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा? नंबर 10। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही है माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों मुहर्रम का महीना कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना कितना प्यारा है, तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहरल मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा मुहर्रम के महीने की इज्जत करो। जो मुहर्रम के महीने की कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुहर्रम के महीने की कदर कौन कौन तैयार है मुहर्रम महीने की कदर करने? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो माशाअल्लाह हाथ उठे, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो नहीं उठे। सब मुहर्रम महीने की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। और जो कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से पनाह देगा। अब मेरे दोस्तों आप उंगली पर गिनते जाओ मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है मेरे दोस्त। अगर मैं गिनाता जाऊंगा 40 के ऊपर वाकयात मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है। कुछ आज, कुछ बाकी 24 जनवरी को इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? हम सुनते जाएंगे मुहर्रम में कौन कौन सा वाकया पेश आया और उसमें क्या हुआ, और फैसला करेंगे कि खुशी का महीना है कि गम का महीना। अगर गम का महीना है, अगर फैसला हो जाएगा गम का महीना, तो मैं और आप मिलकर मातम करेंगे। और अगर फैसला हो जाएगा कि खुशी का महीना है तो मैं और आप मिलकर खुशी मनाएंगे। लेकिन मुहर्रम का महीना बहुत मोहतरम महीना, अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों उंगलियों पर गिनते जाओ। आपको मालूम होगा एक अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप उंगली पर गिनते जाना। पहला वाकया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे। कहो बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां थे? जन्नत में थे। और आपकी बीवी और हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी जन्नत में थी। लेकिन मेरे दोस्तों बस अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था आदम जन्नत में रहो। अल्लाह ने हव्वा को भी कहा था जन्नत में रहो और खाओ पियो, कोई रोकथाम नहीं, और घूमो फिरो, कोई रोकने वाला नहीं। बस एक दरख्त के करीब मत जाना,
ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم ہوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت ہوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت ہوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, ہوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا, محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اور ایک دعا دیتا ہوں, اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے, پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ ابھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیو کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا.
हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले कितना दावत और तबलीग का काम किया? 900। अल्लाह ने फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल दावत और तबलीग का काम किया। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, एक वक्त वो आया हजरत नूह को बहुत मारा जाता। और मेरे प्यारों, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए सुनना बहुत आसान है। एक हदीस के पाक में लिखा हजरत नूह को कैसे मारा जाता, जैसे मेरे दोस्तों चावल को कैसे हम बोरी में बंद करते हैं या गेहूं को कैसे हम बोरी में बंद करते हैं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ऐसे बड़ी बड़ी बोरी लाई जाती थी। हजरत नूह को बोरी में लपेट दिया जाता, दोनों तरफ से गांठ मारी जाती थी। उसके बाद एक आदमी लात मारता था तो दूसरे के पास हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुढ़कते लुढ़कते चले जाते तो दूसरा आदमी लात मारता। इस तरीके से 10 माइल तक हजरत नूह को लात मारी जाती। 10 माइल मेरे दोस्तों। आखिरी आदमी कहां खड़ा होगा, पहला आदमी कहां खड़ा होगा, और आखिरी वाले के सामने गड़ा होता था, वो जोर से लात मारता था। हजरत नूह पूरे गड्ढे में गिरते थे तो वो आकर कहता था गड्ढे में गिर गए और हमको नूह से नजात मिल गई। यहाँ नूह गड्ढे में गिरते थे, यहाँ अल्लाह जिब्राइल को भेजते थे कि जिब्राइल जाओ मेरे नूह के दोनों तरफ जो गांठ बंदी है उससे खोलो और मेरे नूह को उठाओ, उनके जख्म को साफ करो और उनको कहो मैं राजी नहीं होऊंगा जब तक तुम फिर दावत का काम नहीं करोगे। मेरे दोस्तों 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे दावत का काम किया। मेरे दोस्तों जब 950 साल हो गए हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह को कहा अल्लाह मैं हार गया, मैं थक गया। वे आदमी थकेगा कि नहीं थकेगा? इतने साल हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बी अन्नी मगलूब फंतसिर। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं हार गया, मैं थक गया, अब तू इंतकाम ले ले। अल्लाह ने कहा अच्छा मैं इंतकाम लूं। अल्लाह ने कहा ए नूह इंतजार करो, अब आसमान से पानी बरसेगा, जमीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, समंदरों से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आएगा, यहाँ तक के इनके घर के बर्तनों में पानी आएगा। जो तेरा मानने वाला होगा वो कश्ती में बैठेगा, वो बचेगा, और जो तेरा मानने वाला नहीं होगा अल्लाह कहते वो जालिम को मैं बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह के दरबार में देर तो है लेकिन अंधेर। इसलिए हर जालिम को सोचना चाहिए जब ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। भाई हर जालिम को सोचना चाहिए ऊपर वाले की जब लाठी चलेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। अल्लाह के दरबार में देर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकता। अब वो आसमान से पानी और जमीन से पानी, वो तूफान आया और ये अज़ाब किसका था? और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में बैठ गए। भाई कहो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में बैठ गए। मेरे प्यारे दोस्तों वो कश्ती भी कैसी प्यारी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे और दुआ पड़ी बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम व हिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चलती गई 7 दिन और 7 रात तक। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात तक वो कश्ती दरियाओं में, समंदरों में, पानी में हिचकोले लेती गई और चलती गई। यहां तक कि हदीस पाक में लिखा उस कश्ती में हजरत नूह भी थे और नूह के मानने वाले भी थे। वो कश्ती पानी के तूफान में मक्का पहुंची और उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी कर लिया। उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी किया। उसके बाद में फिर वो कश्ती 7 दिन और 7 रात हर तरफ के पानी में चलती रही। खुदा जालिमों को डुबाता रहा, कश्ती को चलाता रहा, यहां तक एक पहाड़ पर वो कश्ती पहुंची जिसको कुरान करीम ने कहा वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। कहो 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। हजरत नूह भी बच गए, हजरत नूह के मानने वाले भी बच गए और साले जालिमीन बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे आका ने फरमाया जिस महीने में नूह की कश्ती किनारे पर लगी वो महीना मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। तो एक और वाकया बता दूं, फिर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर आएंगे कि और भी सुनेंगे वाकया। मैं पूछने बोल कितने घंटे देने वाले? बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मालूम है कुछ ना कुछ अभी इधर उधर की सुनाएगा। मतलब कफ्फारा पूरी रात का है, बीवी बर्दाश्त करेगी। वो भी आई हुई है तब तो ठीक है, नहीं आई हुई तो कहते ना एक बीवी ने एक मरतबा शोहर को कहा किसी का फिट हो तो ले लो वरना वापस कर देना, हम लोग को सब कबूल कर लेंगे। बोली हबीब माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त पठान है, सब सीने पर कबूल कर लेगा। तो एक बीवी थी, एक बीवी अपने शोहर को कहती मैं तुम्हारी बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत तुम्हारी। शोहर ने क्या कहा मैं ऊपर कुर्सी पर बैठू, तू कहाँ बैठे? मैं यहाँ जमीन पे बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूँ तो मैं जमीन पे बैठूँ।
कहा मैं कुर्सी पर बैठूं, तो बीवी ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहां बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने बातें हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस, कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये समंदर में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह ए अल्लाह ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह। इससे कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी? मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने बाकी हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई, तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया, एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए, गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था।
कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, अब नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में, याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में, यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में, मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक्य हो गए? मेरे दोस्तों अब बाकी बात नहीं, एक और वाक्य बता दूं, दिल चाहता है बता दूं। जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ इतना एक मर्तबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बता दूं ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जाने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए और कहा अल्लाह के रसूल आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा। मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आपके चेहरे पर इतनी चमक। और मेरे दोस्तों अब सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया। हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा आज तो मैं जितना भी खुश हो जाऊं कोई ताज्जुब की बात नहीं, कहो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हुज़ैफा आज तो मैं बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश। मेरे दोस्तों हमारे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा खुशी की वजह तो कोई होगी, इसलिए आज आपके चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती। हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा कौन सा महीना, ये महीना कौन सा? हजरत हुज़ैफा ने कहा मुहर्रम। कहा कौन सी तारीख? कहा कि 10वीं आशूरे का दिन। हमारे नबी ने फरमाया हाँ आज आशूरे का दिन है, 10वीं मुहर्रम है, मुहर्रम का महीना है, और जो रात गई वो आशूरे की रात गई। हुज़ैफा तुझे नहीं मालूम इस आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े 3 इनामात दिए। आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े, सब बोलो भाई बड़े बड़े। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप मुझे बता दें आशूरे की रात में अल्लाह ने आपको बड़े बड़े कौन से 3 इनामात दिए? हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा सबसे पहला इनाम अल्लाह ने आज की रात में फैसला मेरे मासूम होने का कर दिया। सुभान अल्लाह कहो भाई। मासूम समझते हो? मासूम उसको कहते हैं जिससे छोटा गुनाह भी ना हो। तो जब नबी से छोटा गुनाह नहीं होता होगा तो बड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं। हमारे आका ने फरमाया अल्लाह ने आज रात मेरे मासूम होने का फैसला फरमाया। अल्लाह ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। हमारे नबी ने फरमाया ये पहली नेमत अल्लाह ने मुझको दी, अल्लाह ने मुझको मासूम बनाया। दूसरी नेमत हजरत हुज़ैफा ने पूछा कौन सी नेमत? हमारे नबी ने फरमाया आज रात अल्लाह ने मुझको बताया कि ए नबी तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे नबी मुहर्रम के महीने में
आशूरे की रात में अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला। हमारे नबी ने रातों रात अल्लाह को पूछा मेरे उम्मती को जन्नत देगा अल्लाह, तू मुझको क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत तो तेरे उम्मतियों को दूंगा, तुझे तो मैं मकाम महमूद पर पहुंचाऊंगा। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह ये मकाम महमूद क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरा अर्श होगा, 7 आसमान होंगे, 8 जन्नतें होगी, सिदरतुल मुंतहा होगा, मेरा अर्श होगा, मेरी कुर्सी होगी, उसी के सामने तेरा मकाम महमूद होगा। तू मुझे देखता रहेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। मोहम्मद का दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नेमतें हो गई? पहली नेमत अल्लाह ने मासूम होने का फैसला किया, नंबर 2 अल्लाह ने मकाम महमूद का फैसला किया, तीसरी नेमत मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाली हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफा आशूरे की रात अल्लाह ने पहली नेमत मुझको मासूम होने की दी, दूसरी नेमत मकाम महमूद की दी, और तीसरी नेमत अल्लाह ने मुझे कहा, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे कहा मैं कयामत में जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, अल्लाह फरमाते कयामत में जो चाहूं वो करूं, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों नबी मासूम बने कौन से महीने में? मुहर्रम। नबी को मकाम महमूद का फैसला मिला कौन से महीने में? नबी को रुसवा नहीं करेंगे कयामत में कौन से महीने में? जितने वाक़ये हुए खुशी बता रही या गम? खुशी बता रही ना, जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना। मुझे तो अफसोस होता है जो लोग कहते गम का महीना है, काला कपड़ा भी पहनते, काला कपड़ा पहनेंगे, कहेंगे गम का महीना, हम मातम करेंगे, आए हुसैन मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे, बोलो करते करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, इतना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे। करबला का मैदान कितने बजे शुरू हो गया? सब बराबर, और वो जुमा का दिन था, यानी उस जमाने में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के नवासे, उनकी उम्र थी 55 यानी 55, और उस जमाने में कौन सा दिन था? और सुबह 8 बजे तकरीबन ये करबला का मैदान, आपको मालूम है वो कोई लड़ाई नहीं थी, बोलो लड़ाई, क्योंकि हजरत हुसैन के साथ कितने लोग थे? हजरत हुसैन के साथ मर्द, औरतें, बच्चे सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 150, बोलो कितने? 100, और सामने 1,20,000, बोलो कितने? 40,000 इधर खड़े, 40,000 इधर खड़े, 40,000 उधर खड़े हैं। और होता कैसा था मालूम है? मुकाबला कैसा था? वहां से आवाज आती थी अपने एक आदमी को भेजो। हजरत हुसैन यहाँ पर कहते थे भाई कोई एक मैदान में चले जाओ, तो कोई एक मैदान में जाता, 1,20,000 उसके ऊपर हमला करते। सोचो क्या हाल होता होगा, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लेकिन ये जुमा का दिन था। कितने बजे ये मामला शुरू हुआ? अपना सुबह। आपको मालूम है एक वक्त वो आया, हजरत हुसैन ने अपनी जबान से कहा मेरे बड़े बेटे अली अकबर मैदान में आ जा।
बड़े बेटे उम्र 16-17 साल, नाम क्या? अली अकबर। मैदान में अब्बा को मालूम है, हजरत हुसैन को मालूम है मेरा बेटा जाएगा वापस नहीं आएगा, मालूम है। लेकिन जब बेटा घोड़े पर बैठा, अली अकबर बोलो, जब घोड़े पर बैठे जाने लगे, हजरत हुसैन, भाई बाप तो बाप होते ना, हजरत हुसैन की आंख में आंसू थे। मेरा बेटा इधर आओ। हजरत हुसैन आगे बढ़े, बेटे को घोड़े से उतारा, पेशानी को चूमा और कहा बेटा जाओ, हिम्मत से काम करना, कल नाना जान के साथ हौज़े कौसर पर मुलाकात हो जाएगी। वो बड़े बेटे गए, अली अकबर गए, मैदान में गए। मेरे प्यारो, सामने दुश्मनों ने देखा कि हुसैन के बेटे आए हैं, 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 2, और दोनों टुकड़े आगे फेंक दिए हजरत हुसैन के सामने। अब सच बताओ, जुमा का दिन है और हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब बेटे के 2 टुकड़े। अभी तो हजरत हुसैन वो अपने बेटे के 2 टुकड़े को देखते थे कि पीछे खेमे में से आवाज आई, आपका छोटा बेटा अली असगर। बोला, आपका छोटा बेटा कौन? अली असगर। वो प्यास से बहुत तड़प रहे। वो एक रिवायत में 1 साल के, एक रिवायत में 2 साल के, वो प्यास से बहुत तड़प रहे। हजरत हुसैन ने बड़े बेटे के जनाजे को देखा, 2 टुकड़े को देखा, उसके ऊपर सफेद चादर कफन का कपड़ा रखा और पीछे दौड़ते दौड़ते गए। देखा कि छोटा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, पानी के बगैर तड़प रहा है। हजरत हुसैन ने अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया, 1 साल का बेटा या 2 साल का बेटा, और हजरत हुसैन दौड़ते 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 आगे दुश्मन के पास चले गए और जाकर कहा मेरे बेटे को पानी पिला दो, क्योंकि मेरा बेटे का तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये 2 साल के बच्चे का तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसको तो कम से कम पानी पिला दो, मुझे मत पानी पिलाओ। सामने से एक तीर आता है और सीधा छोटे बच्चे के दिमाग पर लगता है और दिमाग के आर पार निकल जाता है और खून का फुवारा आता है और हजरत हुसैन के हाथ में, बोलो बेटा शहीद हो गया। बोलो इन्ना लिल्लाही। हजरत हुसैन वापस आए, बड़े बेटे का जनाजा रखा है, छोटे बेटे के जनाजे को रखा, दोनों के ऊपर सफेद कपड़ा रखा। मेरे दोस्तों, बोलना बहुत आसान है, आज मैं भी बाप हूं, आप भी बाप हैं, आपकी भी औलाद होगी। थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे के लिए सोचो। हजरत हुसैन ने दोनों बच्चों के बदन पे हाथ रखकर कहा, मेरे बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मैं बहुत मोहब्बत करता था तुमसे, बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हारा हंसना बोलना खेलना सब मुझे याद आता है, लेकिन आज मैं सब बर्दाश्त करूंगा मगर गुनाह को बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बताओ कौन सा दिन था? अब कौन सी नमाज का वक्त आएगा? जुमा की नमाज का वक्त आएगा, लेकिन वहां जुमा नहीं होने वाली, क्योंकि करबला तो एक जंगल है, एक मैदान है। अभी करबला बहुत बड़ा शहर बन गया, उस वक्त तो जंगल था। तो कौन सी नमाज पढ़नी है? जोहर की। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू फरमाया और जितने साथी थे उनके साथ कौन सी नमाज अदा की? जब जोहर की नमाज हुई, अब सुनना, जब जोहर की नमाज हो गई, बहुत रोए, अल्लाह के सामने बहुत रोए। हजरत हुसैन नबी के नमाज से बहुत रोए और फिर क्या फरमाया मालूम? लाओ अब मेरा घोड़ा लेकर आओ। सबको समझ में आ गया कि अब कौन जा रहे हैं, बोलो कौन जा रहे हैं? हजरत। अच्छा, घोड़ा मंगवाया, फिर कहा वो पुरानी चादर रखी है, बहुत बड़ी चादर, वो लेकर आओ। तो सबने कहा वो तो पुरानी चादर है। कहा लेकर आओ, वो चादर ओढ़ कर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी नजर में वो पुरानी है, ये वो चादर है जो जमाना पहले मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ की बनाई हुई चादर है। आज हमको अपनी माँ से मोहब्बत है, हजरत हुसैन को अपनी माँ से कितनी मोहब्बत होगी। वो चादर को यूं ले लिया, फिर उसके बाद में कहा वो तलवार देखो वहां रखी है, वो तलवार लेकर आओ। तो किसी ने कहा वो तलवार की अनी टूट गई है। कहा मुझे उससे मतलब नहीं कि तलवार की अनी टूटी है, लेकर आओ, मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद में कुछ मंगाया नहीं, खुद जाने लगे। सबने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा वो इमामा, ये इमामा होता है ना, काला इमामा, काले कपड़े का इमामा। तो सबने कहा हम लेकर आते। कहा ना, तुम नहीं लेकर आओगे, मैं लेने जाऊंगा। वो इमामा लेकर आए, कभी ये गाल पे रखा, कभी ये गाल पे रखा, कभी चूमा और कहा तुमको नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। और उसके बाद में इमामे को सर पे रखा। अरे चादर ओढ़ी है तो माँ फातिमा की है, और तलवार हाथ में लिए तो शेर खुदा हजरत अली की है, और इमामा पहना है तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और घोड़ा लेकर जो चले मैदान में हजरत हुसैन। मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, अकेले हुसैन
3.5 घंटे तक मुकाबला किया है अकेले। बोलो हजरत हुसैन कितने घंटे तक मुकाबला किया? 3.5 घंटे तक। कहां तलवार लगी, कहां खंजर लगे, कहां मालूम नहीं मार लगी, पूरा बदन छलनी हो गया है, पूरा बदन से खून बहता है। कितने घंटे तक मुकाबला किया? और आवाज आई, आवाज आई। क्या आवाज आई? कद हाना वक्तुल असरी। किसी ने पीछे से आवाज दी, असर का वक्त हो गया। जोहर पढ़ के गए थे ना और दुआ हुआ मांग के गए थे, अब कौन सा वक्त हो गया? अब सुनना ए मानिकपुर वालों, बहुत पते की बातें सुनना। जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी ना कि असर का वक्त हो गया, आपने तलवार जमीन पे रखी और यूं हाथ कर दिए, तो सामने वाले कहने लगे हार गए, हार गए भाई, भाई हार गए, हार गए, हार गए। हजरत हुसैन ने फरमाया नबी का नवासा हारा नहीं, असर का वक्त हो गया, मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी असर की नमाज पढ़ो। भाई तुमने भी तो कलमा पढ़ा है, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, तुम भी असर की नमाज पढ़ो। तो सामने से आवाज आई, हमको जरूरत, बोलो हमको जरूरत। मानिकपुर में भी आवाज आती है, हमको फजर की जरूरत। तो हम लोग हजरत हुसैन की टीम में कि सामने वाली टीम में? अब सुनना, आवाज आई कि हमको जरूरत नहीं। तो हजरत हुसैन ने फरमाया कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे पानी तो दे दो, वजू कर लूं। भाई पानी दे दो ना, वजू कर लूं, मैं पीऊंगा नहीं। क्यों? पानी दे दो, वजू कर लूं। कौन सी नमाज पढ़ना? मैं असर की नमाज पढ़ लूं, फिर मुकाबला शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे पानी तो दे दो, मैं असर की नमाज तो पढ़ लूं। सामने से आवाज है पानी भी नहीं मिलेगा। तो हजरत हुसैन मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह ये पानी नहीं देंगे तो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा? अरे पानी नहीं देंगे तो करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में लिखा ना, कुरान करीम में लिखा फ़इल्लम तजिदू मा फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। हजरत हुसैन ने मैदान करबला में यूं हाथ रखा, क्या करने जा रहे? तयम्मुम। यूं हाथ रखा, मिट्टी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा, ये तयम्मुम का तरीका बता रहा हूं। फिर यूं हाथ रखा और अपने यूं हाथ पर, यूं हाथ पर हो गया। अब तयम्मुम में दो ही काम, नियत करने का पहला काम, चेहरे पे मिट्टी मलने का दूसरा काम, दोनों हाथों पर मलने का तीसरा काम। हो गया, असर की नमाज शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। बोलो किसने शुरू कर दिया असर की नमाज? और नबी के नवासा पूरे जख्मी है, कैसे नमाज पढ़ी होगी? अल्लाह अकबर। फिर रुकू में गए, बोलो अल्लाह, फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा, फिर सजदे में गए। असर की पहली रकात का पहला सजदा, बोलो असर की पहली रकात का। और दुश्मन आपस में कहने लगे अब मारो, सजदे में गए, अब मार लो, मौका है। मेरे प्यारों, एक दुश्मन दौड़ता दौड़ता आता है। हजरत हुसैन ऐसे सजदे में ऐसे ही जाते ना, ऐसे सजदे में थे, एक दुश्मन आता है और आपके ये बाजू पे और ये दो तलवार लाता है और दोनों तलवार इतना जोर का मारता है, आपके दोनों बाजू बाहर आ जाते हैं, दोनों हाथ बाहर आ जाते हैं और आप जमीन पे गिरते हैं, मगर जुबान पर है सुबहान रब्बियल आला। सजदा कर रहे थे ना, बोलो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। खून से तरबतर हो गए। दूसरा दुश्मन लोहा लेकर आता है, आपके सीने पे इतना जोर का मारता है यहाँ पे सीने पर। और तीसरा शमुर नाम का दुश्मन आता है, तलवार लेकर आता है, आपकी गर्दन मुबारक को पूरा अलग कर देता है और तलवार की नोक पर हजरत हुसैन की गर्दन मुबारक को, चेहरे मुबारक को रखता है और यूं कहता है हम जीत गए। वो शमुर नाम का दुश्मन हजरत हुसैन का पूरा चेहरा तलवार की नोक पर रखकर कहता हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हजरत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलो कौन इमाम, वहां थे। वहां से कहने लगे तुम जीते नहीं, तुम हार गए, क्योंकि मेरे अब्बा जिंदा थे तब भी उनका चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी उनका चेहरा ऊपर ही नजर आता है। वो जिंदा थे तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है। मेरे प्यारों, मैं आपसे सवाल पूछूं, हजरत हुसैन कौन सी नमाज पढ़ी? असर की नमाज पढ़ी ना। मालूम था दुश्मन हमला करेंगे, अरे नहीं मालूम था? मालूम था, लेकिन फैसला कर लिया जान दे सकता मगर नमाज नहीं छोड़ सकता। फैसला कर लिया। हजरत हुसैन जो नबी के नवासे थे, मैं कहता हूं नबी के नवासे थे, जन्नत के फूल थे, जन्नत के बाग थे, बल्कि यूं कहो कि जिनके बदन में अगर दूध था
تو حضرت فاطمہ کا تھا، جن کے بدن میں اگر لہو تھا تو حضرت علی کا تھا، اور جن کے سر پر پیار کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور جنت میں سارے جوان جب جنت میں جائیں گے سردار بنیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین بنیں گے۔ تو جو جنتی تھے وہ یہ فیصلہ کر کے گئے کہ نبی کا نواسہ جان دے سکتا ہے مگر عصر کی نماز قضا۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کا نماز کا معاملہ ہم کو کہاں جان دینا ہے؟ بھائی ہم فجر پڑھنے آئیں گے تو کوئی مارے گا، کوئی ہم سے پیسہ مانگے گا، کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے گا۔ حضرت حسین کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرنے والا ہو نا تو کرنے دینا مگر نماز کو ہاتھ سے جانے۔ حضرت حسین نے ایک سبق سکھایا کہ کربلا کے میدان میں آیا، میرے بیٹے شہید ہو گئے، میں نے کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر۔ بولو، کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر اور ختم کیا نماز پر۔ بولو، ختم کیا۔ اور جو شروع کرتا ہے صبر پر اور ختم کرتا ہے نماز پر، اللہ کہتا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا، پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور میرے دوستو، جب 10ویں محرم آئے گی نا، کربلا سے پھر آواز آئے گی، کیونکہ حضرت حسین مرے نہیں ہیں۔ پورا مجمع بولو، حضرت حسین زندہ ہے۔ بولو، کیونکہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے، صرف زندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان لایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ میرے مانک پور والوں، کربلا کے میدان سے 10ویں محرم کو مانک پور میں بھی آواز آئے گی کہ نبی کے نواسے جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے، اور حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ ارے ہاتھ اوپر کرو نا، محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو، ساتھ میں بولو نا، ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے۔ بولو، کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے۔ ایک آواز سے کہو، حسین کا دامن۔ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں۔ جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیارو، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے، کتنا ہم روئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا، میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے۔ بولو، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا، کون رو رہا؟ خیمے میں گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دوڑتے گئے، دوڑتے گئے، دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے، اور جا کر کہا سنو سنو، تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔
میرے پیارو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ دو جنازے رکھے ہوئے دو بچوں کے, اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے, میں تم سے بہت پیار کرتا تھا, تمہارا ہنسنا, تمہارا رونا, تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے, لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں, سب گوارا ہوتا ہے, مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا یہ مجھے گوارا. اب وقت ہوا جمعہ, کون سا وقت آیا, لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے, اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا, گاؤں بھی نہیں تھا, ایک میدان تھا, تو کون سی نماز ہوگی. آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو, اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے, 2 رکعت پڑھنا ہے. آپ نے اعلان کیا, مجمع تیار ہو گیا, آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے, کس کے سامنے, کیونکہ اللہ کہتا ہے خود بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا, اللہ کے سامنے. بھائی ہے نا, ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے. اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا, جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار اللہ کے سامنے روئے. جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا, سننا برابر, کہا وہ خیمے میں جاؤ, وہاں ایک کپڑا ہے, بہت لمبا چادر ہے, لمبی چادر ہے, وہ لے کر آؤ. جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا, کتنی مرتبہ چوما, اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا, اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا, یہ چادر میری نہیں ہے. بولو کس کی ہے, میری ماں. کون ماں, فاطمہ. پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا وہاں سے تلوار لے لو, تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے, ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں, اچھی تلوار لے کر جائے, وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ, مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے, وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر آپ اندر گئے, سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں, کہا خاموش رہو. آپ اندر گئے, ایک کالا امامہ, یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ, ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے, اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما, اپنے گالوں سے لگایا, اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. ارے میرے پیارو, کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے. امامہ نانا جان محمد رسول اللہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے, 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے, 1 لاکھ, اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا, سر سے لے کر یہ ہونٹ تک, ہونٹ سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کر ناک تک. کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے. اور پھر کیا ہوا, اب سننا وقت, آپ نے تلوار ایسے زمین پہ, اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے, پورے خون میں لت پت ہو گئے, آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی. تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے, تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھی, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا نہیں نہیں, یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے, میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی, مقابلہ ہوگا. میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت ہو گیا ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے, جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا, میں پڑھوں گا, آپ بھی کلمہ پڑھو. اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں گا, آپ لوگ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی, پڑھ لو ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے, یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق, غدار, نمک حرام, دھوکے باز, جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ, کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی. اور کیا کہا, اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی, کہا کیوں پانی, کہا پانی مجھے پینا نہیں, آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, جان جائے گی اللہ کے راستے میں, لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو, میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لو, میرے بدن کو صاف کر لو, میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو, میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہے نا قرآن میں, ہے نا یہ قرآن میں, پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا, میں نے بولو نا کیا کرنے کا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2، یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قوم میں آئے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے اور دشمنوں نے، میرے پیارو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا جو آپ کے پورے چہرے پر آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور جو تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیارو اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ نہیں، ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے اور